میں آپ سبوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ اس خوش آمدید میں جو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کان موجود ہے جو خدا کے کلام کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہے۔ ایسا ہی ہے۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم ان کانوں کو رکھتے ہوئے اپنے من سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اپنے دل سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اپنی روح سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اپنی ساری عقیدت سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اے خداوند خدا فرما، کیونکہ تیرا بندہ اور تیری بندی پورے طور پر تیار ہے تیرے کلام کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دل میں اتارنے کے لیے اور اسے سجدہ تعظیم پیش کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہماری دوسری شکر گزاری مہینے کے شروع میں یہ ہے، ہمارے پاس وہ گوشتین دل ہے جس سے ہم خداوند کے زندہ کلام کو اپنے باطن میں اترنے دیں گے۔ ہم نے ایسا سنگ دل اپنے اندر نہیں رکھا ہے، ایسا سخت دل ایمانداروں کے پاس نہیں ہے، بلکہ گوشتین دل ہے، اور گوشتین دل جو ہے ہمیشہ خدا کے کلام کو ویلکم کہتا ہے۔ وہ ہمیشہ خدا کے کلام کو اپنے اندر بسنے کے لیے مدد رہبری اور رہنمائی کی درخواست کرتا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری ہماری شکر گزاری اس مہینے کے شروع میں یہ ہے کہ ہم خداوند خدا کو سجدہ تعظیم پیش کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس عزت کے لیے، اس آنر کے لیے، اس رتبے کے لیے جو خداوند خدا نے مجھے اور آپ کو پہلا کرنتھیوں 3 باب کی نامی آیت میں بخشا ہے۔ اور وہ عزت کیا ہے، وہ احترام کیا ہے، وہ آنر کیا ہے جو خدا نے مجھے اور آپ کو بخشی ہے، اس کا ذکر خدا کا خادم مقدس پالوس رسول اس طرح سے کرتے ہیں، ہم خداوند کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ ہم خداوند کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ We are laborers together with God۔ بہت بڑی عزت ہے جو خداوند خدا نے مجھے اور آپ کو بخشی ہے۔ ہم خداوند کی کھیتی ہیں، وہ کہتا ہے We are God's husbandry۔ ہم خدا کا کھیت ہیں۔ تیسری عزت اور آنر، ہم خداوند کی عمارت ہے۔ ہم خداوند کی عمارت ہے، اس کا مقدس ہے، خدا کا کلام بتاتا ہے We are God's building۔ ہم ان جب 3 چیزوں کو خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پھر ایک بات میرے اور آپ کے ساتھ سب سے پہلے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے خادم ہو یا کلیسیا ہو، کوئی پاسبان ہو، ٹیچر ہو، استاد ہو، اسے ہمیشہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے خداوند کے کھیت میں، خداوند کی عمارت میں، ہم خداوند کے پاکستان میں کام کرنے کے لیے چنے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، الگ کیے گئے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو صرف اس لیے خداوند خدا نے مسیح ہونے کا درجہ دیا ہے کہ آپ زندگی کو اس طرح سے انجوائے کریں جیسے دنیا کرتی ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کا ایک مقصد ہے، ہر صبح کا ایک مقصد ہے، ہر دوپہر، ہر شام، ہر رات کا ایک مقصد ہے۔ ایک ویک جو آپ کو دیا گیا ہے، اس کا خداوند آپ سے ایک مقصد دے کر اس کی ساری جستجو طلب کرتا ہے۔ تو آپ خداوند کے کھیت میں کام کرنے کے لیے بلائے گئے۔ مجھے تو یہاں تک کہنے دیجئے گا، آپ کا جنم اس لیے ہوا ہے، آپ مسیح گھرانے میں اس لیے پیدا ہوئے ہیں، آپ مسیح ماں کے پیٹ میں آپ کو اس لیے خدا نے وجود دیا ہے کہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر، آپ دیانتدار بن کر، آپ وفادار بن کر، آپ جان نثار بن کر اپنی زندگی کے ہر گھڑی اور ہر لمحے اس کی خدمت کرنے والے بن سکیں۔ اب اس
खिदमत में जो खुदा ने मुझे और आपको सौंपी है, इसके मुख्तलिफ दर्जात हैं, इसके मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, इसकी मुख्तलिफ किस्म की खुदा ने हिस्से मुझे और आपको बांटे और दिए हैं। पर कोई भी शख्स जो है वो ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जिंदगी गुजारने के लिए आया है, दौलत इकट्ठी करने के लिए आया है, पैसा बनाने के लिए आया है, असर और रसूख की बुनियाद पर झूठी इज्जत को पाने के लिए आया है, या वो अपने बच्चों को ये देखता है कि वो बड़ी दौलत पैसा इकट्ठा कर ले, मुझे खुदा ने इसलिए भेजा है। ये मकसद हमारी जिंदगी का किसी तौर पर कलाम खुदा की रोशनी में नहीं है। जब आप अपने सही मकसद से हट जाते हैं, सही तालीम से हट जाते हैं, सही विजन से हट जाते हैं, तो फिर आप खुदा के काम में सबसे ज्यादा डेड होकर रह जाते हैं। इसीलिए हमारी मुर्दगी के पीछे, हमारी पासमुर्दगी के पीछे, हमारी काहली के पीछे, हमारी लापरवाहियों के पीछे, हमारी बेकदरियों के पीछे बात यह है, हम अपने चुनाव के मकसद को ही जानते नहीं है। आप खुदावंद के चुने हुए लोग हैं, आप ब्लेस्ड लोग हैं, आप वैसे बरकत लोग हैं, आपका करोड़ों में से इंतखाब किया गया है, पर आप इस बात को नहीं जानते, आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। और पौलुस रसूल कहता है, हम खुदावंद के साथ काम करने के लिए बुलाए गए हैं। हम उसके खेत में, उसके पाकिस्तान में, हम उसकी इमारत में काम करने के लिए बुलाए गए थे। हमारा चुनाव किसी भी तौर पर खुदा के कलाम की रोशनी में ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यहां थोड़ा सा अफसोस करना चाहता हूं, और वो अफसोस इस कलाम के हिस्से के साथ जुड़कर बुलंद होता है, और वो ये कि बहुत से खादिम, बहुत से पासबान और बहुत से कलीसिया के मेंबर्स इस खेत में काम करने की बजाय, खेत कौन है, इमारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? यशायाह की किताब चैप्टर 5 के अंदर आपको इस पाकिस्तान के बारे में पता चलता है। वो खुदा की जमात है, वो खुदा की कलीसिया है, वो खुदा के लोग हैं। तो बहुत से खादिम, बहुत से पासबान और बहुत से रूहानी लीडर और कलीसियाई मेंबर्स खुदा के इस खेत में, जब मैं खेत कह रहा हूं तो इसका मकसद समझिए कि इसका मतलब खुदा की कलीसिया, खुदा के लोग हैं। तो बहुत से लोग खुदा के इस खेत में काम करने की बजाय खुदा की बख्शी हुई इज्जत के मुताबिक ताबेदारी, फरमाबरदारी और जाननेसारी से काम करने की बजाय वो दुनियावी लड़ाई और झगड़ों में पड़कर इस खेत को बंजर और वीरान और सूखा करने के दर पर हमेशा रहते हैं। जब भी कलीसियाओं के अंदर लड़ाई और झगड़ा उठता है, तो ये खेत बढ़ने की बजाय, बरकत पाने की बजाय डिवीजन का शिकार हो जाता है, तरह तरह की आजमाइशों में गिर जाता है, दुनिया के लिए तमस्कर का बाइस बन जाता है, ठोकर का बाइस बन जाता है, और हमारी मुनादी और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी दूसरों के लिए मजाक का बाइस बन जाती है। और मैंने आपसे कहा, बहुत से पासबान और बहुत से रहबर ऐसा ही काम कलीसियाओं के अंदर करते हुए आपको नजर आते हैं। हमारा बहुत सा रोल इस बात के अंदर काम करता है, माफी के साथ, कि चर्च की बढ़ती नहीं होनी चाहिए, चर्च के अंदर ब्लेसिंग नहीं होनी चाहिए, चर्च के अंदर सही ठोस तालीम नहीं होनी चाहिए। इसलिए बच्चों, यहां मुझे और आपको इस बात को समझना है, हम खुदा के खेत को बनाने वाले हैं, उसे संभालने वाले हैं, उसके लिए दस्ते दुआ बुलंद करने वाले हैं, उसके लिए घुटनों के बल होने वाले हैं, इसके लिए रखने में खड़े होने वाले हैं। हम क्या हैं दरअसल? आपकी जाती जिंदगी जब खुदा के घर से दूर रहती तो आपकी फिक्र क्या है, आपका पछतावा क्या है, आपकी नदामत क्या है, आपका अफसोस क्या है? अगर 2 दिन आपको मुसलसल रोटी ना दी जाए तो बदनी तौर पर आपका क्या हाल होगा?
जब कभी आप पूरा हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना आप रूहानी खुराक से दूर रहते हैं, कभी आपको इसकी फिक्र में भी सताया है? आप कभी इसके लिए भी फिक्रमंद हुए कि इतने दिन गुजर गए हैं, मैंने रूहानी खुराक नहीं ली है, खुदा के कलाम से मेरे काम इतने दिनों से आशना नहीं हुए, उसकी आवाज नहीं सुनी गई है, उससे बातचीत नहीं हुई है? तो यहां हमें इस बात की फिक्र भी रहनी चाहिए कि हम खुदा के खेत में काम करने वाले हैं कि खेत को उजाड़ने वाले हैं, कि खेत को वीरान करने वाले हैं, खेत का तमस्कर उड़ाने वाले हैं। इस खेत के लिए आपकी दुआ क्या है? अब सच बताइएगा, कलीसिया के लिए, कलीसिया की बेदारी के लिए कितनी इस जमात में बच्चे हैं जो ये दुआ करते हैं, खुदावन से मेरी कलीसिया को बेदारी अता फरमा। ऐ खुदावंद, खुदा मेरे साथ अगर मुझे तूने बेदारी बख्श दी है तो उनको भी बेदारी अता फरमा दे जो मर चुके हैं रूहानी तौर पर। शायद ही कोई बच्चा आपको ऐसा मिले, वो घर ऐसा मिले जो इस तरह की दुआ करता हो। इसलिए मरा हुआ शख्स मरे हुए शख्स को जिंदगी नहीं दे सकता है। मरे हुए शख्स को वो ही बचा सकता है जो खुद जिंदा हो। अगर आप बेदार हैं, आप रासबाजी में बढ़ने वाले हैं, तो आप उनके लिए फिक्रमंद हैं जो रासबाजी में बहुत पीछे रह गए हैं, इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। इसलिए पौलुस रसूल इस जगह पर फरमाते और कहते हैं, खुदा ने तो ये एजाज बख्शा, खुदा ने तो इसलिए मेरे माथे पर अपने नाम की मोहर लगाई कि तू मेरा है और मेरे खेत में काम कर। मैंने तुझे इसलिए चुना है, मैंने इज्जत दी है, पैसा दिया, दौलत तुझे दी, नाम दिया, शान दी, इसलिए मेरे लिए काम कर। हम खुदावंद के लिए कितना काम करते हैं इसका तो फैसला आप खुद ही कर सकते हैं। पर हम खुदा की खेती में इसे वीरान करने वाले बच्चों ना बने। कभी भी हम इसके कम होने पर खुशी का इजहार ना करें। आज बहुत थोड़े लोग थे और शुक्र हो कि बहुत थोड़े लोग थे। इस बात का फिक्र करें कि आज क्यों थोड़े हैं। खुदाबंद खुदा, आज जो बरकत मैंने तेरे घर से पाई है, काश मेरा बच्चा भी पाता, मेरी बेटी पाते, मेरी फैमिली भी वही बरकत पाते। ये फिक्र आपके अंदर होनी चाहिए, ये जस्तजू आपके अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर अमली चीज की फिक्र होनी चाहिए। और अमली फिक्र क्या है, जरा देखिए तीसरे बाब की 10वीं-11वीं आयत के अंदर अमली फिक्र होनी चाहिए। मैंने उस तौफीक के मुआफिक, पौलुस रसूल फरमा रहे हैं, मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी, दाना बीमार की तरह नींव रखी। और दूसरा उस पर इमारत उठाता है, पास हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। खुदा के इस कलाम के इस हिस्से में आपके लिए लिखा गया, मेरे लिए लिखा गया कि आप और मैं खबरदार रहे। पास हर एक कलीसिया में जितने भी हैं, हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। पहला एतराफ खुदा के खादम का सुने, जो मेरा और आपका भी होना चाहिए। इस आयत में पहला एतराफ ये किया गया है और वो ये है, ऐ खुदावंद खुदा, तेरे फजल, रहम और तरस। और फिर कलीसिया से मुखातिब होकर, करंथस की कलीसिया से, कि मैंने जितनी खिदमत का हिस्सा दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ किया है, तुम्हारे लिए बरकत का बाइस को हिस्सा बना है। जो खिदमत का हिस्सा मैंने लियाकत से और सलाहियत से और हिकमत से अदा किया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये सारा फजल, मेहरबानी, एहसान, रहम खुदा का है। हालेलुया। ये खुदा के खादम का बहुत बड़ा एतराफ है जो इस जगह पर किया है। मुझ में लियाकत नहीं है, मुझ में सलाहियत नहीं। पौलुस रसूल कह रहे हैं, ये खुदावंद की मेहरबानी से मैंने खिदमत की है।
اگر آپ میں سے کوئی لوگ بیدار ہوئے ہیں، خدا کے تابعدار ہوئے ہیں، خدا کے وفادار ہوئے ہیں، تو یہ خدا کی اس مہربانی کی وجہ سے ہوئے ہیں جو خدا نے مجھ پر کی، اور میں نے اسے دیانتداری سے تمہارے پاس، تمہارے سامنے اسے اونڈیلا ہے۔ عزت اور جلال جو آدمی ہر پر خداوند کو دینے کے لیے تیار رہتا ہے، خدا اس کی عزت کے سین کو ہمیشہ بڑھاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ میں تیری عزت کے سین کو برقرار رکھوں گا، قائم رکھوں گا۔ آپ خدا کی عزت کو کریں، خدا آپ کی بے پناہ عزت کرتا ہے۔ آپ خدا سے جڑ جائیں، آپ خدا سے پیار کرنے والے بنیں، یقین جانیں خدا آپ سے بے پناہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ خدا کو عزت دے کر دیکھیں، خدا آپ کو عزت سے نوازے گا۔ آپ خدا کے گھر کو عزت دیں، آپ عبادتوں کو عزت دیں، آپ خدا کی ستائش کو عزت دیں، آپ خدا کے کلام کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے اسے عزت دیں، خداوند خدا وہ کچھ آپ کے لیے کر ڈالے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کے گھر میں اسے عزت دیں، اور جب کوئی بندہ کسی کو عزت دیتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ دوسرے شخص کے سامنے اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بھی نہیں بیٹھتا ہے۔ جب کوئی کسی دوسرے شخص کو عزت دیتا ہے تو ہر جملے میں اس کے سامنے کہتا ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جی آپ فرما رہے ہیں، جی میں پورے غور سے سن رہا ہوں۔ یہ ہے بظاہر عزت دینا، اور اس سے بڑھ کر جب آپ کسی کی عزت کرتے ہیں اور جب وہ دل سے عزت نکلتی ہے تو آپ کی شکل و صورت بدل جاتی ہے، آپ کا طور طریقہ بدل جاتا ہے۔ پر آپ اور میں یہ جج کر سکتے ہیں کہ خدا کے گھر میں ہماری عزت دینی کیسی ہے، بادشاہ کو عزت دینا کیسا ہے، ہمارا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارا گانا کیسا ہے، ہمارا خدا کی حضوری میں آنا کیسا ہے۔ کچھ باتیں کرنے کی ضرورت، آپ کا سب کچھ اٹھنا بیٹھنا طے کر دیتا ہے آپ خداوند میں کتنے عزت دینے والے ہیں اور عزت خدا سے لینے والے ہیں۔ آپ کی جستجو بتا دیتی ہے، آپ کا خدا کے گھر میں آنا بتا دیتا ہے کہ خدا کا گھر آپ کے لیے کتنی عزت والا ہے، یا آپ نے اسے فالتو کھاتے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس جگہ پر بات کی گئی ہے عمارت اٹھانے کی، اور عمارت ہمیشہ اس جگہ اٹھائی جاتی ہے جب اس کے نیچے نیو رکھی جا چکی ہو، فاؤنڈیشن جو ہے یہ پہلے رکھ دی جاتی ہے، اس کے اوپر عمارت اٹھائی جاتی ہے۔ اگر عمارت کی فاؤنڈیشن اچھی نہ ہو تو اوپر جتنا بھی اچھا سلسلہ اٹھا لیں وہ کسی بھی ٹائم گر سکتا ہے۔ اب اس نیو کو اور اس فاؤنڈیشن کو اور اس بنیاد کو رکھنے والا جو ہے وہ ہے مقدس پالوس، اور اس نے کہا یہ بنیاد میں نے کسی اور کے نام سے نہیں بلکہ میں نے یہ بنیاد یسوع مسیح کے نام پر رکھی ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے میں نے تمہارے بیچ میں کلیسیا قائم کی۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک چھوٹی کلیسیا جس کی بنیاد میں نے ڈالی ہے وہ میں نے یسوع مسیح کے نام سے ڈالی ہے، وہ میں نے اس کی ساری عزت اور عقیدت میں کو سامنے رکھ کر اور اس کی کفارے کی تعلیم کو سامنے رکھ کر میں نے اس بنیاد کو رکھا ہے۔ مسیح مصلوب کی منادی کے باعث میں نے اس بنیاد کو رکھا ہے۔ اب میرے بعد غور سے سنیے گا، اب میرے بعد جو بھی کوئی دوسرا خادم آئے گا، کوئی بارسبان آئے گا، کوئی ربی آئے گا، ٹیچر آئے گا، استاد آئے گا، اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ نیچے جو بنیاد ہے وہ یسوع مسیح کی ہے۔ کلیسیا کو روحانی طور پر بڑھاتے وقت اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، کس بات کا؟ کہ یہ کلیسیا یسوع کے نام سے ہے، ان کا وجود یسوع کے نام سے ہے اور یہ کسی اور کے نام سے نہیں ہے۔ اور میں بھی یہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، یہ کلیسیا جو میرے سامنے بیٹھی ہے اس کی بنیاد بھی یسوع ہے،
इसकी इमारत भी यसू है, इनका सुनना भी खुदा यसू मसीह है, इनका इज्जत देना भी खुदा यसू मसीह है। मैं शुक्रगुजारी इस बात के लिए करता हूं। आपका फख्र, आपकी इज्जत, आपकी आमद, आपकी सरफराजी, आपने खुद कहा अपने दिलो जान से, रूह से, सजदों से, दुआ से कि वो सब कुछ यसू ही है। और इसी बात की फिक्र करता है मुकद्दस पालूस रसूल। और वो इस बात के लिए कि जो बुनियाद मैंने रखी है, इस पर जो भी आने वाला खादम रखे, आगे इमारत उठाएगा, यानी तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ाएगा, उसे ख्याल रहना चाहिए कि उन्हें यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरी तालीम इस कलीसिया, इस जमात को नहीं देनी है। ना सिर्फ उन्हीं उसे देना है और ना ही जमात को कोई ऐसी तालीम रसीब कर उसे लेना है जो कि खुदा यीशु मसीह से के अलावा, ऐसी तालीम जिसमें यीशु हमारा महवर ना हो, ऐसी तालीम जिसमें यह साबित ना हो कि यीशु मेरा निजात दहिंदा है, वो कुल दुनिया का कफारा देने वाला, वो तालीम मेरे लिए नहीं है। मुझे इस बात को जानना है कि जो तालीम दी जा रही है, आप डिफरेंट चर्चेज में जाते हैं, इबादत में जाते हैं, वहां जाके देखें कि इज्जत और जलाल किसको दिया जा रहा है। अगर इज्जत और जलाल यीशु को दिया जा रहा है, सजदा यीशु को किए जा रहे हैं, सारी ताज़ीम यीशु के लिए, उस देने वाले की तालीम की बुनियाद यीशु है और कलाम के सही पे है, तो फिर आप यूं समझे कि वो शख्स, वो कलीसिया इज्जत और जलाल अपने यीशु को दे रही है। और ये बातें मैं इसलिए आपके सामने कर रहा हूं, आज मुझे इस बात की फिक्र है कि ये तालीम जानना मुझे और आपको बहुत जरूरी है। इसलिए बेटे, आप जो खुदावंद का खेत है, बड़े ध्यान के साथ रहिए। आपकी इमारत कैसे उठ रही है, ख्याल अपनी तालीम का, अपनी इमारत का ख्याल रखें। इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुराख करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सही तालीम से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े ध्यान के साथ, बहुत ख्याल के साथ, अब मेहरबानी के साथ खुदा के इस कलाम को आप समझें और जानें। तीसरे बाब की 11वीं आयत देखिए क्या खूबसूरत आयत। वो कहते हैं कि मेरी जो मैंने बुनियाद रखी है, वो बुनियाद दरअसल सही सिर्फ और यीशु ही है। यीशु के अलावा कोई दूसरा, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। अगर कोई रखेगा तो उसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 7वें बाब की 24 से 27 आयत में बताया। उसने कहा वो इमारत ऐसी है जो चट्टान पर नहीं, क्योंकि चट्टान यीशु है, वो इमारत चट्टान पर खड़ी नहीं करता है, वो रेत पर घर बनाता है, और जो रेत पर घर बनाता है और जो बनाता और बनाने देता तो नहीं बेवकूफ है, क्योंकि ना आंधी का, ना तूफान का, ना बारिश का वो सामना नहीं कर सकते हैं। जिसके अंदर यीशु नहीं है, वो यीशु के नाम की दुख और मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो यीशु में कभी है, जो यीशु का बेटा और बेटी है, उस पर मुसीबतें आ जाए, दुख आ जाए, परेशानियां आ जाए, बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसकी एक ही आवाज है, मेरा यीशु सबसे बड़ा है और वो कुदरत वाला है, ना मुझे ना मेरी औलाद को कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जीते रहो, ईमान में जीते रहो, बढ़ते रहो, इसी समझ सीख में आगे बढ़ते चले जाओ, आपको कोई रोक नहीं सकता है। खुदावंद के कलाम में हमें इस बात की हमेशा फिक्र रहनी चाहिए। यीशु मसीह के अलावा कोई शख्स अगर अपनी इमारत उठाता है, बहुत जल्द वो इमारत भी गिर जाती है और वो खुद भी तबाह बर्बाद हो जाता है। पर यहां एक सवाल के इसको थोड़ा और आगे लेके बढ़ता हूं, और वो ये है कि मुकद्दस पालूस रसूल को करंथस की कलीसिया को ऐसा क्यों लिखना पड़ा? करंथस की कलीसिया को उसे ऐसा क्यों याद दिलाना पड़ा? जब ऐसी
फिक्र मेरे और आपके अंदर आए, ऐसी सोच आए, ऐसा क्यों, क्या कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से मुकद्दस पौलुस रसूल इन आयत के अंदर कह रहा है हमारा और बुनियाद सिर्फ यीशु है। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है जिसकी खबर मुकद्दस पौलुस रसूल तक पहुंची है। इस गड़बड़ का एक अक्स हमको दूसरा करंथियों उसके 11वें बाब में मिलता है। जरा देखिएगा दूसरा करंथियों मेरे साथ, मेहरबानी से जल्दी से बाइबल खोलें। दूसरा करंथियों 11वें बाब की मैं 2-4 आयत आपके इससे जरा आप जानिए और समझिए। 11वां बाब उसकी पहली आयत से, फिक्र देखे बंदे की क्या है, खुदा के बंदे की फिक्र, खुदा के रसूल की फिक्र। जरा देखिए, काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफी की बर्दाश्त कर सकते। हां तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है। वो शौहर कौन है? यीशु मसीह। तुम्हारी मंगनी, तुम्हारी शादी एक ही से की है जो यीशु मसीह है। तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक दामन कमारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। अब मसला यह है दुल्हा पाक है। अब दुल्हा पाक है तो पौलुस रसूल ने कहा कि तुम ऐसी कमारी दुल्हन हो जो उस दुल्हा के मियार के मुताबिक पाक दामन हो। अगर दुल्हा किसी तरह से, जमीनी बात करेंगे यीशु का हटाकर, अगर दुल्हा, जमीनी दुल्हा अगर किसी बात में नापाक है, किसी बदी का शिकार है, तो उससे यह तवक्को नहीं करनी चाहिए कि मेरी बीवी बिल्कुल पाक रहे। नापाक आदमी ये कैसे तवक्को करे कि मैं तो नापाकी में जियो, मैं गंदगी में जियो और बाकी सब कुछ ठीक हो? ऐसा नहीं होता है। खुदामंद खुदा पाक है, इसलिए वो चाहता है दुल्हन नापाक नहीं होनी चाहिए, दुल्हन भी पाक होनी चाहिए। किरदार में पाक, सजदों में पाक, इबादत में पाक, शुक्रगुजारियों में पाक, ईमान में पाक। और यही दुल्हन अगर दुनियावी दुल्हा से कहे कि अपने अंदर झांक के देखो तुम पाक हो, तो फिर मामला कुछ और होगा, ताकि तुमको पाक दामन कमारी की मानद मसीह के पास हाजिर करो। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने, बड़ी गौर से सुनिए, जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाए जो मसीह के साथ होने चाहिए। जिस तरह सांप ने हवा को बहकाया और उसकी पाक दामनी को खराब किया, मुझे डर है, मुझे फिक्र है कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो। कलीसिया, कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही ना। किसको डर लग रहा है? पौलुस रसूल। वो क्यों डर रहा है? क्योंकि वो खुदा का खादिम है। वो क्यों डर रहा है? इसलिए कि उसकी जिम्मेदारी इस बात में है कलीसिया पाक हो, सुनने वाले पाक हो, उनके बिहेवियर अच्छे हो, उनकी सोचें पाक हो। चौथी है, क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मुनादी करता है जिसकी हमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बचा है। तो लाहक यह है कि कुछ ऐसे जो दूसरी तालीम लेकर आए थे वो कलीसिया के अंदर घुस रहे थे। करंथस की कलीसिया में कुछ बिदती उस्ताद अब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर आना शुरू हो गए थे। पौलुस रसूल को इस बात की खबर मिली कि वो बुनियाद और वो कलीसिया जिसकी बुनियाद मैंने यीशु के नाम से रखी थी, अब उसमें बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं, ऐसे उस्ताद आ गए हैं, ऐसे पासबान आ गए हैं, ऐसे रहबरों ने जगह बना ली है जो इस कलीसिया
कलीसिया को राह नजात और अबदी जिंदगी का यीशु के अलावा मुतबादल रास्ता मुतारफ करवा रहे हैं। यीशु के अलावा भी अबदी जिंदगी का रास्ता है, निजात का रास्ता है। ये खबर मिली थी मुकद्दस पालूस रसूल। उस वो बेचैन हो गए, परेशान हो गए, अफसुर्दा हो गए, अफसोस में मुबतला हो गए कि जो मेहनत मैं करके आया हूं, मैंने यीशु के नाम की वहां बुनियाद रखी, उसमें ऐसे लोग शामिल होना शुरू हो गए हैं, ऐसे प्रीचर आना शुरू हो गए हैं जो उस कलीसिया के अंदर आए हैं और टीचिंग देना उन्होंने शुरू किया। सबसे बड़ी परेशानी यहां ये लाक हुई कि इस कलीसिया जिसकी बुनियाद पालूस रख के आया था, उन्होंने इन ऐसे उस्तादों को जिनकी तालीम का ताल्लुक बिद्दत के साथ था, उन्हें वेलकम करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ वो उन्हें वेलकम कर रहे थे, बल्कि उसकी तालीम को गौर से सुनना उन्हें शुरू कर दिया। ये इस जगह मामला हो गया था कि वो ना सिर्फ अब वो तालीम सुनने लगे थे, बल्कि उसकी तायद भी करने लगे। और पालूस रसूल को इंतहाई फिक्र लाहक हुई। पालूस रसूल ने कहा, ऐ करंथस वालों, मैंने तो तुम्हें कुछ और सिखाया, मैंने तो तुम्हें कुछ और बताया था, मैंने तो तुम्हें कुछ और याद दिलाया था। ये किस डगर पर, ये किस रास्ते पर, ये किस पटरी पर तुम चल पड़े? क्या तुम भूल गए हो? क्या तुम भूल गए? मैंने तो ये कह कर तुम्हारे बीच में मैंने ये बुनियाद रखी थी कि यीशु ही कदूस है और यीशु ही बरहक है। ये जो आए हैं, इनकी नजर में ना यीशु बरहक है और ना ही कदूस है। मैंने तुम्हारे बीच में ये कहा था कि पैदाइश पर और मौत पर, मुर्दों के जी उठने पर और फिरदौस पर, मौसमों पर, आंधियों पर और तूफानों पर, धूप पर और छांव पर, और अबदियत पर और समंदरों और दरियाओं पर, झरनों पर, आबशारों पर, बीमारों पर, तंदुरुस्तों पर, मुकद्दसों पर, फरिश्तों पर, रास्तबाजों पर, गुनाहगारों पर, इब्तिदा पर, आखिरत पर, अदालत पर, जहन्नम पर, कुल दुनिया के जिस्म जान पर, जलाल और शौकत के ताज पर, खुदा की तमाम दस्तकारी पर, हर तरह की ताकत और कुव्वत पर, शैतानी कुव्वतों पर, हीले हमलों पर, मौजज़ात पर, मुकाशफात पर, इल्हाम पर, माजी हाल मुस्तकबिल पर, सोचों, ख्यालों और ज़हनों पर, दुनिया की सब सल्तनतों पर, बादशाहों पर, हुक्मरानों पर, खुशियों पर, उम्मीदों पर और रूहों पर, जलाल पर, कमाल पर, सवाल पर, मुकद्दर की आखिरी मंजिल पर, हर किस्म के इल्काब और बनी इंसान के हस्बो नस्ब पर, हमारी औलाद की बढ़ती पर, हमारी सांसों और धड़कनों पर, हमारी नेमतों और बरकतों पर, दिनों, महीनों, सालों और सदियों पर, आसमानों पर, सूरज पर, चांद पर, सितारों पर, राह पर, हक पर, जिंदगी पर, क़यामत पर, तख्त पर, ताज पर, देखी अनदेखी चीजों पर, नजात पर, बका पर, गुनाहों की माफी पर, उम्र की दराजी पर, जिंदगी की हदों पर, अगर किसी को प्यार है तो वो यीशु है। मैंने ये सिखाया तुम्हें, मैंने ये तुम्हारे बीच में तालीम दी, मैंने ये तुमको सिखाया है कि यीशु ही माफौकल फितरत हस्ती है, यीशु मसीह ही इलाही है, यीशु लामहदूद है, वो बारनाशा भी है, जो सुलह और सलामती का शहजादा भी है, जो खोए हुए को ढूंढता है और निविष्टों को पूरा करने वाला भी है। वही मैं यीशु है जिसकी मैंने बुनियाद तुम्हारे बीच में मैंने रखी है, जो इंतहाई मोहतरम है, मुबल्ल है, सब्र मुल्लम्बी है, वही तो यीशु मसीह है। द डिवाइन प्रोक्लेमेशन भी यीशु ही है, वही हमारी न्यू, वही हमारी इमारत और वही हमारी अबदी चट्टान और हमारी जिंदगी का पूछता है, ऐ करंथस तू क्यों भूल गया है कि यही तालीम मैंने तेरे बीच में देकर तेरे बीच में यीशु नाम की बुनियाद रखी थी, फिर तुझे इतनी जल्दी दूसरे कैसे गुमराह कर सकते हैं?
اے میرے بچوں، آپ بچپن سے جوان ہو گئے ہیں اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر آج بھی آپ کو یہی سکھانا ہے اور یہی یاد دلانا ہے کہ یسوع ہی سب کچھ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ یہ تو ہماری وہ بنیادی تعلیم ہے جس کے مطابق ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع کے علاوہ کوئی بھی دوسرا نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب تو ہم کو بہت آگے بڑھنا ہے، اب تو ہمیں اور بہت سی گہرائیوں کی طرف بڑھنا ہے اور بہت سے مکاشفات کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ اسی میں سے نہیں نکل سکے ہیں تو ابھی تک آپ کو دودھ کی ضرورت ہے اور آپ کھانا کھانے کے لائق نہیں ہیں۔ اور خدا کا خادم کہتے ہیں، کب تم اس قابل بنو گے جب میں تمہیں کھانا دوں اور تم اسے کھا بھی سکو اور ہضم بھی کر سکو۔ خدا نے جو آپ کو برکت دے، اسی بنیاد پر جو خدا یسوع مسیح ہے اپنی زندگی کی، اپنے بچوں کے مستقبل کی ہمیشہ امانت اٹھاتے چلے جائیں۔ اس امانت کو کبھی بھی دکھی نہ ہونے دیں، کبھی رنجیدہ نہ ہونے دیں، بلکہ جم کے اس کے اندر کام کریں، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے عقائد کے مطابق، اپنی ایفرٹس کے مطابق۔ جو خدا نے آپ کو سونا چاندی جو کچھ بھی دیا ہے، اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو اس کی خدا یسوع مسیح کے سامنے نہ کوئی اوقات ہے اور نہ ہی کوئی حیثیت ہے، کیونکہ سونا چاندی اور دنیا کے سب خزانے دینے والا بھی یسوع مسیح ہی ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو کثرت کی برکت دے۔